Okay, next we are going to solve fill in the blanks question and answer. तो इसमें फर्स्ट नंबर दे रखा है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू डैश इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल. तो वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी भी इक्वल टू होता है आर ओमेगा. तो आर हो गया यहाँ पे रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो इस दोनों में ये रिलेशन आता है. ओके, then v equal to r omega and r is what? Radius and omega is what? Angular velocity. Next, second question is that SI unit of angular velocity. We know that SI unit of angular velocity I have discussed already, that is radian per second. Radian per second. That is angular velocity of this SI unit of angular velocity. Okay. Next, third, we see that in question number third, displacement is a dash quantity. You know that displacement is a vector quantity. What is that? Displacement is a vector quantity. Then third में आंसर आएगा vector. Okay, SI unit of angular velocity radian per second. And the linear velocity is that omega into radius. Omega is what? Angular velocity. And in the question number 4, energy is a dash quantity. Energy is a scalar quantity. Scalar quantity. Force is a physical quantity having magnitude and we know that force has both magnitude as well as direction. Their answer will be direction. Force has both magnitude as well as direction. That is what? Direction. So let's move on the next question. That is question number 6. Okay, in the question number 6 we are given here that a train is moving out of the railway station, then the platform is at dash in with respect of train. We can see here is the both condition is given to us. ट्रेन जो मूव कर रहा है ना रेलवे स्टेशन से, तो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है ट्रेन के रिस्पेक्ट में. तो देखिए एक चीज़ होता है क्या यहाँ पे कि ए एंड बी बोथ मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव. वी नो दैट अबाउट इट. मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव. इफ बी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए, then we can say here is at stationary. हम एक दूसरे को कंसिडर कर सकते हैं. ए को अगर रोक दे तो बी मूव कर रहा है ना, और अगर बी को रोक दे तो बी का जो वेलोसिटी होगा वो ए को मिल जाएगा है ना इसके रिस्पेक्ट में. तो दैट इज ए मूव करेगा. तो इस तरीके से अगर मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन को अगर हम रोकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ट्रेन का वेलोसिटी हम प्लेटफॉर्म को दे सकते हैं. तो प्लेटफॉर्म का स्पीड जो होगा दैट विल बी इन द मोशन. प्लेटफॉर्म विल बी इन द मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. द ट्रेन इज इन द मोशन. In the motion, but if we stop the train then platform will be in the motion with respect to train. तो यहाँ पे हो जाएगा that's answer is then the platform is in the motion with respect to train. Now the question was this distance travel is always what? Distance travel is always positive, that is never negative. So we can say here distance travel is always positive. Now in the question right, if the distance time graph is a straight line, then the body has a dash motion. You know that body has uniform motion. Then what is there? Body has uniform motion. I already told you that what if the graph is straight line here. This is distance and time. तो आपको पता होगा डिस्टेंस टाइम में ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो हमें पता होता है कि यहाँ पे इसका जो होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है. then the body has uniform motion. Okay, ninth में if the distance time graph is curved then the body has a non-uniform motion. Just opposite to it. Okay, speed and velocity are expressed in dash unit. In the question number 10, what is that? Speed and distance.
speed and velocity both have same unit, that is same. What is that? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है ना, दोनों में मीटर पर सेकेंड ही होता है, स्पीड का भी होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी भी होता है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से दोनों का सेम यूनिट होता है। अगर चलिए 11th में, तो देखते हैं 11th में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू स्पीड इन द पर्टिकुलर। ओके, तो वेलोसिटी जो होता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही इसमें स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगा। स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हैज डायरेक्शन एंड स्पीड नीड्स आल्सो डायरेक्शन टू बी बोथ इक्वल। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो स्पीड में भी क्या करना पड़ेगा, हमको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। और वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होता ही है। तो स्पीड में किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन अगर दे दे तो हो जाएगा आपको वेलोसिटी, तो दैट इज डायरेक्शन। तो इफ द वेलोसिटी हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट बिकम्स, sorry, if the speed has a specific direction then it becomes velocity, that is the answer, direction will be the answer. Okay, let's move on the next question that is given to us. Okay, in the question number 12 we are given that the velocity of a body at any particular instant during its motion is called dash velocity. Okay, तो देखिए वेलोसिटी जो होता है किसी बॉडी का, जैसे मूव कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो जस्ट इसी पॉइंट पर हमको वेलोसिटी निकालना है, तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 12 का 12 का ये पहला आंसर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी इंस्टेंट की अगर बात करेंगे ना, किसी भी इंस्टेंट दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में दे रखा है आप क्वेश्चन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद द टाइम एक्सेलरेशन इज व्हाट। देखिए एक्सेलरेशन तब क्या होता है 13 में हम बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी घट रहा है। तो वेलोसिटी जो है पहले 50 था, मान फिर 40 हो गया, फिर 30 हो गया, धीरे धीरे घट रहा है। तो इसमें मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना। तो सो इट्स हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन and negative acceleration is what, it is retardation. We can say acceleration is what, negative और retardation, ये हो जाएगा इसका आंसर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन रखा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज व्हाट, यू नो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज व्हाट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यू कैन से हियर दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 15 में, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 8.5 मीटर स्क्वायर देन इट इज रिटार्डेशन, इट्स रिटार्डेशन इज व्हाट। देखिए रिटार्डेशन में क्या होता है कि नेगेटिव साइन जो होता है नहीं हट जाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये हो गया कि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव वेलोसिटी। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया आपको कि दैट इज व्हाट 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कह रखा है कि आपको रिटार्डेशन 8.5 मीटर है तो आप समझ जाएंगे नेगेटिव में एक्सेलरेशन दे रखा है। तो एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव देन वी कैन से रिटार्डेशन इज 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 वी आर गिवन दैट अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी हैज अ डैश हैज यूनिफॉर्म डैश। ओके, देखिए इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बॉडी किसी भी एक्सेलरेशन किसी भी फ्री फॉल में बॉडी का स्पीड हर सेकेंड बढ़ता है। यहाँ से अगर मान ली बॉडी को ड्रॉप करें तो पहले सेकेंड में स्पीड, दूसरे सेकेंड में स्पीड, तीसरे सेकेंड में, हर सेकेंड इसका स्पीड इंक्रीज होते जाता है। तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन जो है हमेशा स्पीड जी काम करता है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, इट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर that is given to us. Okay, let's see in the question number 17. It is given to us that the velocity time graph of the body having uniform acceleration is a dash. Okay, तो किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है। ये यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता होगा ये
वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है दैट इज एक्सेलरेशन, और ये स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि यूनिफॉर्म होना है। तो एक्सेलरेशन जब भी यूनिफॉर्म होगा तो स्लोप जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, 18 में क्वेश्चन रखा है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज व्हाट। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 18 का। अब देखिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यू नो दैट। अगर वेलोसिटी 0 है, सॉरी अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। अगर ये वेलोसिटी है तो ये कभी चेंज नहीं हो रहा, मतलब अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा वेलोसिटी, और ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज अगर नहीं हो रहा है तो 10 माइनस 10 बाई कुछ टाइम ले लीजिए तो 0/t मतलब 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू अपन टी। तो फाइनल हो गया v इनिशियल u, दैट माइनस करेंगे दोनों 0 आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी 0, दैट्स व्हाट वी रिक्वायर्ड हियर। लेट्स मूव ऑन द 19th क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस इज, ओके 19 में क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पे the slope of a radius, sorry, the slope of a distance against time is what। okay, the slope of a time, distance and time, distance and time, तो इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है, या सॉरी स्पीड देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप जो है वेलोसिटी देता, तो यहाँ पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, दैट इज स्पीड। तो दैट इज स्पीड, आपको ये मिलेगा, ठीक है, तो ये स्पीड मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट वी सी हियर इन 20 नंबर क्वेश्चन। ओके, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 रेडियन होता है, देखिए आपको बताते हैं 1 रेडियन, अगर हम बात करें 1 रेडियन तो इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर, एक बॉडी जो है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर टोटल 360 डिग्री यहाँ पे, दैट इज व्हाट 2πr। तो 360 डिग्री जो है यहाँ पे 2πr कवर कर रहा बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पे क्या कि आपको जो 1 रेडियन होता है, पाई रेडियन जो होता है यहाँ पे, पाई रेडियन आपको ध्यान रखना दैट इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। तो 3.14 रेडियन दैट इज 180 डिग्री। तो आप अगर कह सकते हैं यहाँ पे, तो 1 रेडियन की अगर वैल्यू चाहे तो आप कह सकते हैं 180/3.14। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, इट मीन्स अप्रॉक्स 57.3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 रेडियन जो होता है ना यहाँ पे, ठीक है, 57.3 डिग्री इक्वल होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 57.3 डिग्री, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, इनका जो भी MCQ एक एक करके